So welcome you all. मेरा नाम भानुप्रिया है. I am Bhanupriya Vish and I am from Nainital Uttarakhand. और I am a EFT coach and a NLP practitioner. और मैं I was thinking from a long time that to come with a topic emotional residue, right? So when we hear this word emotional residue, what comes to your mind? You can use a chat box for your insights. When we say emotional residue, what comes to your mind? Any insights you have? Any experience you have regarding these emotional residues? Past memories that we forgot, but still something left, right? So unprocessed, right? Unprocessed things. And what else? So यहाँ पर we all are like working in the field of healing, right? We all are, right? We all are maybe the feelings left after, yeah, trauma never resolved yet. Yes. Hi Shri, can you open your camera? I think Shri, yeah. Hi. Actually, we started the meeting. We just started. You have missed nothing. So, uh, just started the meeting and you have missed nothing. So Yeah. don't go in FOMO. Okay. Okay. I was outside, so I couldn't join it before 5. No worries, no worries. So we were talking about the emotional residues. We will use a chat box for most of the things. तो इमोशनल रेसिड्यू क्या है और एज अ हीलर एज अ कोच Yeah. जो हम हैं वी आर टैकलिंग सो मेनी पीपल राइट वी आर डूइंग वन टू वन सेशंस वी आर डूइंग हीलिंग वर्क yoga and all things so we are coming across many people Yes. so we are sensitive souls हमारे अंदर वो empathetic चीज है right so somewhere unconsciously subconsciously when we interact with people right we tend to absorb their energy right so we tend to absorb it right and many times it's happening at an unconscious level even though we are keeping like we are doing that salt bath we are using epsom salts or whatever modalities are there the physical hygiene we are keeping but there's some because these things are very deep rooted it's in the cells right so in our cells so still on deeper level there are some traces कुछ trace होते हैं जो हमारे cells में store होते हैं एक कहावत होती है ना कि सुख आता है और जाता है लेकिन जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं दुख होता है ना वो आता है और रहता है एंड इट चूजेस आर कोई बॉडी का पार्ट चूज करता है इस पे तो पूरी बुक्स लिखी गई हैं कि सम विच इमोशन इज स्टोर एट व्हाट बॉडी बट इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी ऑल्सो कि आप कहाँ स्टोर कर रहे हो वो चीज सो इस पूरी जो मैं वर्कशॉप में मेरा जो ध्यान आपका आई वांट टू grab your attention towards one more most important thing that is body wisdom आपको पता है बॉडी विजडम के बारे में आजकल हम बहुत सुन रहे हैं सोमैटिक वर्ड सोमैटिक राइट सोमैटिक चीजें चलने लगी हैं आजकल सोमैटिक वर्कआउट सोमैटिक ये चीजें आई थिंक योगा वाले जानते होंगे सोमैटिक अर्लियर ना स्पिरिचुअलिटी में क्या होता था जब स्पिरिचुअल पाथ जो हम था सो कॉल्ड बॉडी को इतनी तवज्जो नहीं देते थे कहते थे बॉडी को छोड़ो आत्मा है whatever thing right but gradually they have learned as Buddha also said कि choose the middle path. If body is not there, I couldn't get that word. Which word? Body wisdom. Body wisdom. Yeah, it's body wisdom, right? So हम बॉडी से कनेक्ट नहीं होते राइट और
ये जो हमारे इमोशनल रेसिड्यूज है राइट, ये भी हमारा कनेक्शन तोड़ते हैं हमारी बॉडी के साथ, हमारे इंट्यूशन को डिम करते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैं किसी को हील, मैं आई एम गिविंग हीलिंग टू समवन राइट, सम एक्स वाई जेड, कोई पेन है उसकी बॉडी में, मैंने एक सेशन लिया, आई टुक अ सेशन, देन क्या हुआ, आफ्टर द सेशन आई फेल्ट द पेन, आई स्टार्टेड, मेरा हाथ दर्द या आई गोट अ हैंड पेन या लेग पेन, ऐसा अक्सर होता है, वी यूजुअली इग्नोर दैट कि मे बी इट्स समथिंग एल्स, वी डोंट क्लीन इट राइट, सो इन लॉन्गर टर्म इट हैम्पर्स आवर ग्रोथ, क्योंकि वो हल्के हल्के क्या होता है, वो एनर्जी फॉर्म में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो कभी लगता है आपको किसी से आप बात करते हो, व्हेन यू हैव इंटरेक्शन विद समवन एंड यू डोंट फील गुड आफ्टर इट राइट, या फिर यू कम फ्रॉम यू गो टू अ क्राउड, ठीक है, एंड सडनली यू डोंट फील, यू फील वेरी स्केर्ड या कुछ ऐसे इमोशंस, सो दैट इज द साइन कि आप उस जगहों से उस इमोशंस को ले रहे हैं, क्योंकि आप सेंसिटिव हो राइट। ओके, सेंसिटिव लोगों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि दे आर लाइक 10 फोल्ड उनके साथ होता है, बिकॉज दे उनकी जो एनर्जी बाउंड्रीज है ना, दे आर वेरी पोरस राइट, क्योंकि वो इतने एम्पैथेटिक है, उनके बीच में मैं और तेरे का बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि उनका ईगो डिजॉल्व रहता है बहुत हद तक, दे हैव अ डिजॉल्व्ड ईगो, सो द डिफरेंशिएशन बिटवीन टू इज नॉट देयर, वो वननेस में रहते हैं, इवन द बॉडी। सो अक्सर क्या होता है, उनकी बाउंड्रीज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, पोरस होती है राइट। सो कैसे, मतलब ये चीजें क्या करती है, उसकी वजह से आप ये सारे इमोशनल रेसिड्यूज को इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। अब देखिए, अभी कुछ शीशा है, मान लीजिए एक शीशा है, अब वो अंदर से गंदा है, स्पेक्स अंदर से गंदा है, हम बाहर से सफाई कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट क्लीनिंग फ्रॉम द आउटसाइड, हम कहते हैं फिजिकल हाइजीन रख रहे हैं राइट, वी आर डूइंग सम चैंट्स और व्हाटएवर जो बाहरी चीजों पे है, लेकिन उस शीशे को इंटरनली क्लीन करने के लिए हमको इस इमोशनल रेसिड्यू पे काम करना पड़ेगा। और इस चीज के लिए हम बहुत मेथड यूज करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको मिलेंगे ऑनलाइन भी, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी से कनेक्शन बनाना, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं ठीक है, लेकिन जो हमारा बॉडी से कनेक्शन है वो बहुत क्या है, बहुत वीक है, क्योंकि बॉडी देखो, माइंड बॉडी स्पिरिट तीन चीजें होती है ना, माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। माइंड का हमें पता नहीं, माइंड इज लाइक वेरी वेरी फास्ट मूविंग, माइंड की ना कोई स्पीड पता है, माइंड इज सो फास्ट, और माइंड कहाँ है, बॉडी यहाँ को पता है कहीं पर, इट्स अ टेंजिबल थिंग, इट्स नॉट अ टेंजिबल थिंग राइट, माइंड इज इनटेंजिबल, स्पिरिट का कहाँ है, स्पिरिट टेंजिबल नहीं है, इट्स इनटेंजिबल, लेकिन बॉडी टेंजिबल है, बॉडी को हम देख सकते हैं, बॉडी टेंजिबल है, तो बॉडी इज इन द मोमेंट, बॉडी ही नाउ में है, प्रेजेंट में जो हमारे पास है, जो नाउ ये है, उसमें बॉडी ही चीज है, और हम अगर बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं इस नाउ में राइट, तभी हम कहते हैं इस चीज को आगे ले, इसी चीज को क्लियर कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट हमारा स्टेप है बॉडी में वापस आना। अब बॉडी में वापस कैसे आएंगे हम लोग, एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, हम सब चक्रा सिस्टम जानते हैं राइट, वी ऑल नो चक्रा सिस्टम, कि हमारा हार्ट चक्रा इज अ होम राइट, हम अपने हार्ट चक्रा जो होता है अनहता, द फिफ्थ चक्रा, सॉरी द फोर्थ चक्रा, उसको हम बोलते हैं अपना घर बोलते हैं, ठीक है, इट्स होम राइट। सो जब भी हम ऐसा महसूस करेंगे, सेशंस लेंगे उसके बाद, ठीक है, या कभी बहुत क्राउड में जाते हैं उसके बाद, या जहां भी हमको लग रहा है, हम ये चेकिंग करेंगे अपनी, हम सेंटरिंग करेंगे, इट्स कॉल्ड सेंटरिंग, सेंटरिंग, सेंटरिंग इज कमिंग बैक टू योर हार्ट, कमिंग बैक टू योर बॉडी, ठीक है। वो मैं बताऊंगी आपको हल्के धीरे धीरे स्टेप्स, अभी खाली मैं आपको एक जनरल पिक्चर आपकी पेंट कर रही हूँ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं राइट। जैसे मैंने बात कर, ट्रेडिशनल वेज ये पॉसिबल नहीं होते, अच्छा कैसे कैसे आप रेसिड्यूज कलेक्ट कर रहे हो, या तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो,
किसी से, ठीक है, या आपका कोई अनप्रोसेस इमोशन है, उस समय पे आपको गुस्सा आया, आपने पानी पी लिया, कहाँ गया वो गुस्सा? पेट में, राइट? गुस्सा आया, कहते पानी पी लो, यू आर वेरी एंग्री, राइट, एंड यू आर आस्क्ड टू ड्रिंक वाटर, that anger went to your stomach, and अल्सर्स होंगे ना हमको अगर ऐसा होगा, अगर if you take that gulp and that anger, the fire is in our stomach, what will happen? We will get ulcers definitely at with टाइम, वो एक्यूमुलेट होगा ना वहां पर। सो ऐसी ही चीज होती है। मैंने बोला कि इट्स, मान लो आई वाज नॉट फीलिंग गुड, लेकिन आई वाज डूइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, ठीक है, सो आई एम सेइंग इट इज फाइन, इट इज फाइन, इट इज फाइन। सो आई जस्ट उस इमोशन को मैंने प्रोसेस नहीं किया, तो वो इमोशन अनप्रोसेस। ईएफटी में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, वी वी कितने पहले एक्नॉलेज करते हैं ना करंट सिचुएशन, इसलिए ईएफटी इतनी पावरफुल है, बिकॉज उसमें हम एक फेक पिक्चर नहीं पेंट कर रहे हैं, हम उस पर रियलिटी बता रहे हैं, राइट? तो लेकिन जब हमने प्रोसेस नहीं किया कोई इमोशन, या तो उस समय हमें करने, वी वर नॉट अलाउड टू, राइट, क्या पता वी वर नॉट अलाउड टू, क्या पता हमें उस समय स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ा, सिचुएशंस वर लाइक दैट कि आई कुडंट शो एंगर और सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, या वो कन्वर्सेशन पूरा नहीं हो पाया, कुछ भी था, वो अनप्रोसेस रह गया और उसका लूप क्लोज नहीं हुआ। और नेचर का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इट्स अ रूल ऑफ नेचर, नेचर ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन। यू सी इट, अंत आरंभ, अंत आरंभ, नेचर ऑलवेज कंप्लीट्स थिंग्स, बट व्हेन दीज थिंग्स आर इनकम्प्लीट इन आवर माइंड, सो they are subconscious again and again subconsciously they are in a loop कि अब तो हमें देखा जाए, अब तो हमें अब तो ये ह्यूमन लॉजिकल माइंड है, इसको देखे कॉन्शियस माइंड और इसको क्लोज करे। सो दीज इमोशंस और सडन इमोशंस जो आपको एकदम से कभी कभी सैडनेस महसूस होती होगी एकदम से, यू डोंट नो, कुछ नहीं होता है, और जस्ट यू फील सैडनेस, वो सैडनेस वो अनप्रोसेस्ड चीजों से आ रही होती है। और कभी भी कोई चीज सरफेस कर रही है, राइट, सरफेस करने का मतलब है दैट थिंग वांट्स टू गेट रिजॉल्व्ड। इफ एनी इमोशन इज सरफेसिंग, वी आर नॉट, वी शुड नॉट सप्रेस इट, वी शुड नो। जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम पूछते हैं कि वाई, ठीक है, वाई, ये जो वाई क्वेश्चन है ना, ये बहुत टॉक्सिक है। कैसे? दिस वाई क्वेश्चन often takes us to victim consciousness. Why it happened with me? Why this emotion? जब हम why कहते हैं ना, तो हम थोड़ा सा we just हम अपनी बॉडी को स्केयर कर रहे होते हैं। Why? मुझे कोई थॉट आया, मुझे कोई इंट्यूशन महसूस हुआ, I said why? बच्चे से बोला ना, बच्चे ने बोला मम्मी बाहर जाना है, why? बस, तो बच्चा डर के बैठ जाएगा, राइट? सो वही, सो वाई बोला, सो वाई जब बोला हमने तो क्या होगा, हमने वहीं पर ही अपनी बॉडी को डांट दिया है, तो वो फिर थोड़ा सा बिहेव करने की कोशिश करेगी। लेकिन बॉडी ना, बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ लाइंग, आपका माइंड लाई कर सकता है। हमने 20-25 साल, वी वर इन 25 years, 20 साल we were taught, we were educated in schools, in colleges, right? So what they trained? Our mind. They could train our mind, right? They could condition our mind, but they couldn't condition our body. And when we were born, so initially, you remember, you talked with your body. Initial. So pre-verbal thing is body. वर्बल से पहले की बात, when we don't know the words, we used to speak, we used to communicate, but through body. So body is incapable of lying, and body ही purest form में अभी possible अभी है, जो बाहर की कंडीशनिंग से, राइट, अभी इसको इम्प्योर नहीं हुई है, क्योंकि बाहर की कंडीशनिंग जो सब कुछ थी वो हमारे माइंड को अफेक्ट कर पाई,
लेकिन वो हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाई. इट कुडंट अफेक्ट आवर बॉडी. सो this is a good thing, right? Ki one thing is there with us, that is a pure form, right? And it lives in the now. It's in the present. So the more we come to the body, the more we are in tune with everything. और उतना हम ये जो इमोशनल अपनी बॉडी के यस और नो. अच्छा, आपको ये चीज पता होगा, इंट्यूशन, वी टॉक अबाउट इंट्यूशन अ लॉट, राइट? Intuition. So intuition is not tangible, right? It's intangible thing. But can intuition be, अगर ये intuition is called sixth sense, right? Sixth sense बोलते हैं इसको. लेकिन आपको क्या लगता है, where does intuition lie? अगर बॉडी में अगर मैं कहूँ कि कहाँ है intuition आपका, where is it? कि मुझे intuition आ रहा है. So where do you feel intuition in your body? There's a word for it. Intuition का एक वर्ड भी है, एक शब्द है, ब्रेन. ओके, थोड़ा सोचो, कहाँ, आप खुद ऐसे बैठे हो, सोचो कहाँ से इंट्यूशन आता है, ओरिजिन कहाँ है इंट्यूशन का, कहाँ से ओरिजिन है, आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वेयर द ह्यूमन गॉट, ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ से है. somebody wants to speak. नेवल, राइट? ओके, क्लोज टू इट. सो नेवल में क्या है, एक पार्ट है बॉडी का, गट. यस, हु वाज दैट? विशाखा. गट, राइट? गट फीलिंग. सो जो इंट्यूशन है ना, इट यूजेस आवर फाइव सेंसेस टू कम्युनिकेट विद अस. इंट्यूशन कैन नॉट स्टैंड अलोन. When you have an intuition, you either hear a voice, right? You see a visual, right? You use your five senses to verbalize your intuition, isn't it? Intuition is not alone, right? You need one of the audiovisual aid you have. Five आंखों से, नाक से, you will get some smell, right? Or skin में touch. So intuition वैसे काम करता है आपका. तो बॉडी से ही काम कर रहा है. इन द एंड इंट्यूशन इज ऑल्सो इन द बॉडी, राइट? तो अभी अभी कुछ लोग और बाद में ऐड हुए हैं, चलो ठीक है, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते. तो इन टर्म हम सब बात कर रहे हैं कि बॉडी की ही बात कर रहे हैं कि हर चीज बॉडी में स्टोर हो रहा है, ठीक है, और बॉडी में ही विजडम है, और बॉडी के अंदर ही इमोशनल रेसिड्यू है, ठीक है. अब बात आती है इसको क्लियर कैसे करें, क्योंकि ये तो हिडन चीज है ना, दिस इज वेरी हिडन, ये कंसील्ड चीज है. तो कैसे कैसे कर सकते हैं इसको? तो इसको हम 3-4 स्टेप में करेंगे, राइट? ईएफटी, कुछ और रिचुअल्स में बताऊंगी आपको, और इसमें हम लोग, आई थिंक मेरा ना ये लाइट चला गया है, मे बी बंद हो सकता है, तो आई विल कनेक्ट विद द फोन, माइट बी ओके. इट वुड बी 5 मिनट्स डिले, मे बी लाइट मे कम और नॉट, आई डोंट नो. सो शुरू करते हैं. आज हम मेन हमारा काम है रिचुअल हमारा, इस चीज को, आपको इमोशनल जो रेसिड्यू आपके अंदर अभी तक बना हुआ है, मेरा अभी काम है आपको इससे निजात दिलाना, ठीक है? दैट यू रिलीज टुडे विद दिस क्लास, यू गो एंड यू रिलीज दिस रेसिड्यू, ठीक है? सो कैसे कैसे करेंगे हम? पहले मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करती हूँ. मुझे बताओ ना, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रही है ना आपको स्क्रीन?
Hmm. Shri, can you see the screen? Yes, yes. Okay, okay. I couldn't hear actually. वो मेरे आगे से स्क्रीन गायब हो गई. So सबसे पहले we will center ourselves. ठीक है. हम जानते हैं कि जो हमारा बीज मंत्र है फोर्थ चक्र का वो है यम. राइट, इट्स यम. सो वी विल ब्रीथ. जब भी हम ब्रीथ करेंगे, यौगिक ब्रीदिंग होती है, हमेशा अपनी बेली को बाहर एक्सटेंड करेंगे. वी विल एक्सटेंड आवर बेली. We will hold for 2-3 seconds and then exhale. We'll do this 3 times, right? Then we will chant yum for 5 times. And this is how we will start our centering process. Okay, ready? Give me a thumbs up. Okay, okay. So gently close your eyes. Take a deep breath. Belly bahar and hold it for 2 seconds. And release. We do again. Take a deep breath. Belly bahar and release. Take a deep breath. Belly bahar and release. अब हम शुरू कर रहे हैं एक EFT cleansing ritual for eliminating this emotional residue that has stored in our cells, whether inherited, absorbed, or unprocessed emotions. We gently invite our guides, our Ish Devtas, all the divine beings for this energy exchange to happen and provide us a sacred space for this energy exchange. And जो भी, whatever the outcome is there of this conversation, of this session, is in the highest good of all involved. Whatever information comes, clear the blockages, clear the energy, residual energy, and make us peaceful and calm. It happens for the highest good. Whatever information is required, whatever script has to be spoken, whatever the words have to be spoken, comes from the source. Now we start the session. और हम chant करेंगे yum 5 times. We'll look at a picture, the color green. There is a reason कि जो forest है, जो nature है, वो color green का है. There is a reason कि जो green color है इतना abundant है because it centers us. It takes us to home. It makes us come to our home, the Anahata. Yum. 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 Now, seeing this image in front of us, we will start with the karate chop point. We start the karate chop point. We start our setup statement. Even though I have this emotional residue in me, can you listen to me?
Right. Okay, okay. Thumbs up. Okay, we can start. Even though I have this emotional residue in me, which may be inherited, unprocessed, or absorbed from others, I still choose to love and accept myself. Even though there are emotional residues I am unaware about, their origin, whatever, I still choose to love and accept myself. Even though I'm carrying this burden, this unknown burden, this concealed burden from a long time, I still choose to love and accept myself. And I'm ready to release this emotional burden now. We start with the eyebrow point. Before cleaning this emotional residue, I center myself in my heart space. I come home to my body. I feel it so long. I haven't felt embodied. It feels so nice, so peaceful to be centered in my truth, to be in my body in the present moment, and allow myself to be in my body as I am. Take a deep breath, hold, and release. There's a part of us, especially it's called scar memory, where we have stored our scars. When we have a wound, right, it heals, but still there is a scar after it sometimes. So even though we are healing from a long time, right, there may have some scars, and these scars lives in our amygdala, which is the reptilian brain, right? So that we need to clean that amygdala because those unprocessed emotions are still there with us, lingering there as a scar. Because whenever we see our scar, we are always getting those remembrance of our wound. So healing is not about forgetting, right? But it's about integrating, right? Whatever we have undergone, whatever we have experienced in life, pain, trauma, we integrate the learnings and we release the trauma. It not जरूरी नहीं कि हम भूल जाएं, right? It's not about forgetting things because we are doing that subconsciously. कभी कभी we are forgetting things, we are grounding, we are like suppressing it to forget it, but they are still there in the dungeons of our subconscious, which keeps coming as a Pandora box. Open करते हैं तो निकल के आते हैं कि अरे ये तो अभी तो बहुत है skeleton in the closet, right? बहुत क्लोजेट में skeletons पड़े हुए हैं और हमने वो दबाते गए नहीं. Healing is not forgetting. Healing is integrating and releasing things we want to do. So अमिगडाला की जो क्लीनिंग के लिए एक बहुत ही पोटेंट चीज मानी गई है इन द साइकिक वर्ल्ड. दे आर कॉल्ड वॉलेट फ्लेम्स. Violet flames. I know some of you might heard of them because they are used in the Reiki, right? Yeah, the violet flames are used for the amygdala cleansing, and they are very very powerful. The जो कलर वॉलेट है ना, पर्पल जो कलर होता है वॉलेट कलर,
इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, राइट? एंड ये है तो फायर, बट इट्स गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। जैसे वाटर में, आइस में लेटेंट हीट होती है, राइट? आइस हैज अ लेटेंट हीट, वैसे ही इस फायर में भी एक एलिमेंट रहता है आइस का। तो दिस, जब आप इस फायर को देखेंगे, यू विल फील वेरी वेरी काम, and I will invite you, whenever you're feeling like you want to clean these negative emotions or residue emotions, you can plug into this void flames. You can do your EFT while looking at it, right? Or I will tell you, when you are looking at it, this fire, many buried subconscious memories will come up. You may see them in the fire. Like, you may see some image in the fire, some things which may remind you of some past things, some buried things, right? So we would do some EFT while with these void flames. I hope you are able to see it. Give me a thumbs up if you're able to see the void flames. Wait, एक minute. शेयर करके void flames का, yeah. Now I think you will be able to see it, right? You are able to see it now? Yeah. सो जो आप हम अपनी EFT करेंगे, राइट, वी विल कॉल अपॉन द वाइट फायर, वाइट फ्लेम्स, एंड आज अपने सारी जो हमारी इमोशनल रेसिड्यूज है विल बर्न इन दिस फायर। ओके, रेडी? रेडी है ना सब? ऐसा तो नहीं किसी को अपने पास रखने हैं अभी इमोशनल रेसिड्यूज? somebody want to keep it, कि they are very precious, my precious lot of things, like if somebody want to keep it, they can keep it, but if somebody, like, people are ready to let go of it, and swaha, like swaha ritual is done, so we can continue. Okay, thumbs up everybody. Okay, let's do it. Close your eyes for a moment. Deep belly breathing, hold and release. As we witness, we start with the eyebrow point. We open eyes and we start with the eyebrow point again, the EFT. We will do EFT along with the white flames. As I am witnessing these violet flames, these cool, gentle, high frequency violet flames, they have little warmth, little coldness, and I see them going deep into my subconscious, reaching out to my amygdala, cleansing, burning the scar memory, the traces of unprocessed emotions, unprocessed communication, unprocessed conversations. I give it all to the void flames. हो ही गया है। My
I will say.